Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Yesterday we have discussed biprism experiment. What is that? Biprism experiment is an experiment which is used for the measurement of wavelength of monochromatic light. What have we learned? Biprism experiment. Biprism experiment is used for the measurement of wavelength of monochromatic light. Its setup consists of optical bench, four movable stands are mounted on it, monochromatic source, biprism, convex lens and micrometer eyepiece are fixed on those mountable stands, and they are adjusted such that they are at same level. Biprism is rotated such that its edge is parallel to the slit source. Then that biprism produces two virtual images, and those two virtual images act as coherent sources. कोहरंट सोर्सेस एकदा का ऍक्ट झाले की आम्हाला मग तो स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. कारण एकाच सोर्सच्या दोन सोर्सेस भेटल्यात म्हणजे मोनोक्रोमॅटिकचा विषय संपला. नॅरो भेटणारच आहे कारण की बायप्रिझम आहे, छोटा आहे आणि आपला पॉइंट सोर्स म्हणजे स्लिट सोर्स पण आहे, बारीक स्लिट. And then after we have measured distance between source and the screen. We have measured distance between source and the screen, that is called capital D. We have measured bandwidth by using micrometer eyepiece, and by knowing the value of refractive index and refracting angle of the biprism, we could determine the value of D, that D is equal to twice AA into n minus 1. This is what the small d. But if we don't know the refractive index as well as refracting angle, then what to do? Then friends, recall that we have four things on our optical bench, but till we have used only three. One is source, other is lens, third is micrometer eyepiece, but we have not used micros, that our convex lens. And the time of using that time of use of that convex lens is now reached. We will use that convex lens for the purpose of measurement of distance between two sources. So how is that? We will see it. See, here our biprism experiment in which a slit source is considered. Here biprism, then a point or slit source. Ray emitted from slit source is incident normally on the edge. That ray traveled without deviation. Normal incidence produced zero deviation, and therefore that ray traveled in a straight line. Then one ray taken at the edge, but deviation is produced. Let the deviation such that that ray becomes parallel to the earlier one. Other symmetric ray on opposite side gives you same orientation, that is what parallel to the normal incidence ray. If another two symmetric rays taken, then we get those ray crossing at the same point on the normal incidence ray. If our eyepiece is taken here and see that ray, then that ray appears to come from backward direction. If this eyepiece is taken down and seen this ray, then yes, you may have seen that two rays appear to come from that point, common point S1. Similarly,
If this horizontal ray is seen, then this ray appears to come from backward direction. If the eyepiece is taken at upward position and then seen, then this ray will be appeared from point source, point S2. As S1 and S2 are just apparent position of rays emitting position, then we say that S1 and S2 are virtual sources. Though there is nothing but rays appears to come from that position, and that is why S1 and S2 called as virtual sources. And rays emitted from this S1 and S2 interfere in the region, then we say that सर बरं बरं आता 11 वाजेपर्यंत आहे क्लास मी 11ला फोन करतो तुम्हाला मग चालेल हो सर हो सर then this is the region where interference bands are produced. That is why we say interference region. And we have used this experiment for the measurement of wavelength. So the formula for that wavelength is bar x small d by capital D. You will say that, sir, you have not given bar, but that is what bold letter X. If you are able to draw the bold letter X, then not necessary to take bar on its head. But while writing on paper, we don't waste our time to overwrite it to make it bold, and therefore we say that bar X. So X small d by capital D. Capital D is very simple. Capital D is what? Distance between slit and eyepiece, that is directly measured by the meter scale which is fixed on the optical bench. And second, bar X is measured with the help of micrometer eyepiece by focusing that micrometer eyepiece on two bright fringes. Let bright fringes are first one is at x1 and 11th is at x2. Then x2 reading minus x1 reading divided by 10 will give you width of one band, that is what bandwidth. And now measurement of small d is very important. Basement of this thing is completed in earlier chapter, that is in ray optics. So here direct formula given you, but now how is it that we will see it? Formula will be bar x root of small d1 d2 by d. You have done the practical even of this root of d1 and d2. One ray diagram is completed by yourself. So here biprism experiment, you know, first one, this is what cases of converging lenses. If object is beyond the twice f, beyond the center of curvature, then image is inverted, but it is in between focal length and 2f. Then if object is in between focal length and 2f, then image is inverted, real and opposite side and magnified, but it is beyond 2f. This third is not the useful case for the measurement of distance between two virtual sources, but just you know this, if object is in between center of the lens and the focus, then image will be magnified, but it is apparent. Okay, so measurement of D, you will draw the diagram now, but you just see and then draw. You have drawn it once upon a time. Let A and B are positions of those virtual sources, that is the distance D, means two sources are at a distance D. Now convex lens is moved towards the sources, towards the biprism, or away from the screen, either or you can say only one. What? Convex lens is inserted between what statement will you give, friends? Sana Sultana Kalbi,
कल भी बहुत देरी से आई थी, आज भी कितना देर था पता नहीं। अभी जो मैं इधर आया इस विंडो में इसलिए तुझे मैंने एंट्री दी, वरना मैं उधर ही वो कॉन्जुगेट फोसाई मेथड पढ़ाता था क्या नहीं फ्रेंड्स। नाउ तुम्हें क्या लिखना है उस केस में देखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ is inserted in between biprism and screen. What? Source, biprism, and this is screen. Convex lens is inserted in between biprism and the screen. Distance between the slit source and the screen should be more than 4 times focal length of the convex lens. ये क्यों लिया है? ये बात हमने डेरिवेशन लेकर वो रे ऑप्टिक्स में कह दी है। अरे क्या आप लोगों ने वो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का रे डायग्राम निकाला है या नहीं? यस इट इज, एंड दिस इज द सेम थिंग, बस उसको नाम अलग है। और उस समय बोला था मैंने, उसको कॉन्जुगेट फोसाई मेथड बोलते हैं। आणि तुमचे कोणाची रे डायग्राम चुकली कोणाची बरोबर हे आपल्याला सांगता येतं जर का समजा आपल्याला त्या इमेजची साईज माहिती असेल तर। मग मी एकाला काही लोकांना म्हटलं होतं करेक्ट आहे, काही लोकांना म्हटलं चुकलेली आहे वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ ये है उसका वो था इसका फाउंडेशन। सो ये बायप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स शुड बी मोर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी मोर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्योंकि अगर 4 टाइम्स फोकल लेंथ है तो बस एक ही इमेज मिलती है। 2f पर रखो 2f पर मिल जाएंगी, पर हमको तो 2f से पहले रखना है, तो 2f से अंदर मिलने वाले इमेज। इफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f देन इमेज विल बी बियॉन्ड 2f। इसके लिए ये डिस्टेंस हमें मोर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ रखना है। दोस्तों अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ाया किसी ने, रे ऑप्टिक्स किसी ने पढ़ाया नहीं, और वो डेरिवेशन नहीं समझाया, वो लेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं समझाया, तो ये समझता नहीं। और ज्यादातर लोग वो बात पढ़ाते ही नहीं। आप लोग जरा ज्यादा फोन करके देखिएगा कि अगर किसी का ये वेव ऑप्टिक्स हुआ है तो क्या रे ऑप्टिक्स का वो डेरिवेशन किसने पढ़ाया है? तो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे क्या हो रहा, फिर भी मैं डायग्राम निकाल के बता के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो दिस इज व्हाट कैपिटल डी इज मोर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द फोकल, more distance between screen and the source should be more than 4 times focal length of convex lens। अब क्या करना है? पहले अपना स्टेटमेंट रहता है, ये स्टेटमेंट जरूरी रहता है। विदाउट दिस स्टेटमेंट you will not get the mark of explanation। move the convex lens towards the biprism। what? move the convex lens towards the biprism till किंवा such that असं म्हणायचं, till 2 clear and magnified images are obtained on the screen। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने आता है, ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आसानी जाती, खाली कॉन्वेक्स लेंस रहना आपके पास। कोई अगर समझो परभनी में रहता है और कॉन्वेक्स लेंस नहीं है तो मेरे से कॉन्वेक्स लेंस ले जा सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बाहर कहीं है तो कॉन्वेक्स लेंस लाओ कहीं से, तो भी इधर से उधर से आपके घर में हो सकता कॉन्वेक्स लेंस बाई चांस, तो यू कैन डू इट। कैसे? तो देखेंगे अपन जो कर रहे हैं अभी वैसा ही। मूव द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द सोर्स टिल 2 क्लियर एंड मैग्निफाइड इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मिलते हैं 2 क्लियर इमेजेस मिलते हैं वो पॉइंट सोर्स के। कैसे मिलते? देखिएगा, देखिएगा स्टेटमेंट अभी वो। Let this is the plane of sources, distance between 2 sources is d, move the convex lens towards the biprism or away from the screen till
are such that two clear and magnified images are obtained. देखो अब रे डायग्राम कैसे निकालना है, दो पैराक्सेल रेज लेना, नहीं तो पहला तो ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कौन सी, कि भाई ऑप्टिकल सेंटर का एक क्राइटेरिया हमें मालूम है कि द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच रे ट्रेवल विदाउट डेविएशन, तो ये आसान है उल्टा, पहले ये दो रेज निकाल लेना, आप पैराक्सेल रेज लेना, और पैराक्सेल रे आप लोगों को पता है कि दे ट्रैवल विद थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और जहां कहीं मिलते वहां शार्प इमेजेस मिलते और वहां रखेंगे, अभी हम बताएंगे स्क्रीन पोजीशन। इसका मतलब है A1 B1 आर इमेजेस ऑफ द A एंड B, एंड नाउ दिस इज द लाइन ऑफ द स्क्रीन। अब ये स्क्रीन की पोजीशन बदलने की नहीं, आप करना क्या है, दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। अब यहां पे तो मेजरमेंट लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज इज D1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, इमेज डिस्टेंस इज V। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट है मूव द कॉन्वेक्स लेंस अवे फ्रॉम द बाइप्रिज्म और टुवर्ड्स द स्क्रीन। व्हाट? मूव द कॉन्वेक्स लेंस अवे फ्रॉम द बायप्रिझम और टुवर्ड द स्क्रीन। हा वाक्य आपलं ते महत्वाचंच आहे, कोणीकडे घ्यायचं आता आपल्याला लेन्स घ्यायचा स्क्रीनकडे, आणि दिस इज वाय रे डायग्राम विल बी ड्रॉन इन अ सेम फॅशन एज दॅट ऑफ अर्लियर। रेज विल बी ट्रॅव्हल्ड विदाउट डेविएशन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, म्हणून चला ऑप्टिकल सेंटर मधून रेज काढून टाकल्यात, नंतर पॅराक्सेल रेज घेतल्यात, पॅराक्सेल रे परत एकदा प्रिन्सिपल फोकस मधूनच जाणार आहे आणि आम्हाला शार्प बट डिमिनिस्ड इमेजेस भेटणार आहे। पहिल्यांदा भेटल्या त्या मॅग्निफाईड इमेजेस, आता भेटतील डिमिनिस्ड इमेजेस। यांना नाव देऊ आपण A2 B2 and size of this image will be now let D2. In this case object distance and image distance get interchanged, हे V येणार इकडे खाली आणि U जाणार तिकडे राइट साइडला। दिस इज हाउ वी गेट रे डायग्राम। ये क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाता, नहीं पूछा तो भी वो वही क्वेश्चन में लिखना है, वो बायप्रिज्म का क्वेश्चन आया तो ये रे डायग्राम जरूरी रहती है। पिछले बार एक बार आया था तो ये एक्सपेक्टेड थी, असल में उसके पहले पूरे 10-15 साल उसके पहले मैं पढ़ा था तो वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन एक एग्जाम में इसे एक्सपेक्टेड लिया था तो लोगों के 100 मार्क्स में से 1 मार्क चले गया था, तो 99 मिले थे उस समय बच्चों को। तो ये रे डायग्राम आप लोगों ने निकालना है। क्या मैं आप लोगों के लिए फिर से रे डायग्राम ये करूं क्या दोस्तों? क्या आप लोगों के लिए दोबारा रे डायग्राम बताओ? आप लोगों को निकालना ही है, क्या मैं यहां पे निकालूं, क्या वही बताओ क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ निकालो या आप लोगों के लिए वो पीपीटी का ही बताओ? वही बताओ। हाँ, यहाँ पे पीपीटी वही बताओ, यहीं पर पीपीटी, यस यही यही ज्यादा यही वाले हैं तो हम लोग यही लेंगे, चलो ले लो। दोस्तों मेरी एक बात तो फिक्स्ड है। कौन सी बात फिक्स्ड है? कि मुझे ये जो लाइन्स है ये फिक्स रखना है क्या नहीं? मतलब मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड इमेज की पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि ना मैंने स्लिट की पोजीशन बदली, ना स्क्रीन बदलने वाला हूं। सो डिस्टेंस बिटवीन source and screen is equal to capital D, and this is more than 4 times focal length of the lens. It is fixed. Now मान लो कि ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स है, लेट A एंड B। थोड़ा सा दूरी पर ले क्या मैं ऑब्जेक्ट, बहुत ही नजदीक आ गए तो निकालेगी नहीं जाएगी अच्छी डायग्राम। A एंड B, now I will take position of this
कॉन्वेक्स लेंस हेयर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कलर अलग, क्योंकि हमारे बच्चे खुश होना, अच्छा निकले या नहीं निकले लेकिन खुश होना। चलो अब रेज ले लेंगे। रेज लेना है, कहां से जाना है भाई? ये जाना चाहिए सेंटर से। कौन से सेंटर से? ऑप्टिकल सेंटर से। गया क्या ये? यस, इधर से जाना चाहिए। ये भी रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। चले गया। अरे गया क्या नहीं गया? गया। अब पैराक्सियल रे ले लेंगे। पैराक्सियल रे, दिस वन, दिस वन ले लिया पैराक्सियल रे। अब ये कहां से जाएंगे? ये जाएंगे फोकल लेंथ से। और फोकल लेंथ से जाना मतलब ये नीचे वाली रे ऊपर जाती, ऊपर की रे नीचे डाइवर्ट होती है। तो हमने प्रिज्म में देखा, लेंस में देखा, जहां कहीं स्टडी हो गई वहीं भी सारी जगह यहां देखा। तो ये ले लेंगे भाई अभी इधर का यहां पर, और ये वाली रे यहां पर। और ऐसे ढंग से ये रे डायग्राम निकल गई। एंड दिस डिस्टेंस कॉल्ड एज, कॉल्ड एज, मैं क्यों वही कलर लिया, अलग अलग लेता हूं ना भाई। दिस डिस्टेंस is called as u, while this distance called as v, and this is let a1, this is let b1, and distance between two images is d1. Ray diagram is completed. Okay, आप लोगों ने ये निकालना है, और जब तक आप ये निकालेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ऐसा देखने से वो फाइनल समय पर नहीं जमता निकालने को। अब क्या बोला हमने? बैक मूव द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन, तो इसे उधर ले जाएंगे। कब तक? जब तक टू क्लियर एंड डिमिनिश्ड इमेजेस आर ऑब्टेन। तो मुझे यह पता है कि मेरे दो ऑब्जेक्ट जो है वो तो वही डिस्टेंस पर होने चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो तो निकालना है। ये जो डिस्टेंस है वो डी है, वही ऑब्जेक्ट से लेंस हमने खाली उधर सरकाया तो ऑब्जेक्ट पे थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो डिस्टेंस बिटवीन जो मैं ए एंड बी बताया वही बताने की कोशिश करना। यहां पर मेरा थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, लेकिन ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में इधर निकालूंगा। कितना निकालूंगा? ये हमें सामने की चीज पता है, इसलिए मुझे ये डिस्टेंस बिल्कुल यहां पर लेकर गया मैं। समझे क्या? अगर ये डिस्टेंस यहां पर का डिस्टेंस मेजर किया तो बराबर ये डिस्टेंस आना चाहिए, वहां पे लेकर छोड़ दिया मैंने। नाउ मान लिया कि ये सेंटर है। पहले तो मैं क्या करता हूं, ये सेंटर कहां देखता हूं डायग्राम अच्छे आने के लिए। चलो आ गया, मानो सेंटर तो ये होना चाहिए। मतलब मेरा लेंस थोड़ा सा नीचे सरक गया तो सरकने दो, क्या फर्क गिरता, जाने दो सब। हाँ, ये हटा दिया मैंने। अब चलो एक रे गई सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से रे चली गई स्क्रीन तक। इस पोजीशन से भी ऑप्टिकल सेंटर से ले चली गई कहां तक? स्क्रीन तक। ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। अब दूसरे दो रे, पैराक्सियल रेज। चलो पैराक्सियल रेज ले लेंगे। ये है मेरा एक रे, ये है दूसरा रे। अब नीचे का रे ऊपर चले जाता तो ऊपर का रे नीचे चले आता। मतलब कैसा? सवेरे सवेरे लेडी झाड़ू मारती घर के सामने, तो इधर की लेडी उसके घर के सामने कचरा फेंक देती, तो दूसरी लेडी अपने घर के सामने कचरा फेंक देती। नीचे का कचरा ऊपर, ऊपर का कचरा नीचे, कचरा जहीं का वही, रास्ते पे कचरा ही कचरा। ये चले गए ऊपर, ऐसा है। हम्म, चलो हंसने को फुर्सत मिली, रे डायग्राम निकाला क्या? हाँ क्या सब छोड़ के हंस रहे?
चलो ये v डिस्टेंस बताना है यहाँ पर। इट इज फाउंड दैट, अभी इधर तो नाम देना है ना बाबा, अरे बाबा बाबा नाम देना है, नाम देना है। ये मिला है a2, ये मिला है b2, और डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस इज d2, and it is found that object distance and image distance get interchanged। और आपने किया है ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में, यही तो ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, नाम इसे दिया है कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। कौन सा नाम दिया? कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। दो सेंटर से फोकस, प्लूरल फॉर्म फोसाई, हाँ, कॉन्जुगेट फोसाई मेथड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? और हम लोग अगर ये u एंड v अगर मेजरमेंट पक्का रखते ना, तो ये बगैर मेजरमेंट का इधर का जो फोकल लेंथ है ना, वही ऑटोमेटिक यहां पर आ जाता। क्योंकि क्योंकि हमने मेजर तो किया नहीं, पर क्या ये इतनी फोकल लेंथ है कि नहीं, यहां पर भी इतनी फोकल लेंथ है कि नहीं, देखो वो सेम सेम दिखती कि नहीं। हमें मेजर करने की जरूरत है नहीं, प्रैक्टिकली इतना मस्त इमेजेस मिलती ना ये, मैग्निफाइड इमेजेस एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। मैं आपको जरूर बताऊंगा ये ऑफलाइन में, समझे क्या? और अगर वीडियो मैं कर पाया तो ये वीडियो भी इसका बना के भेज दूंगा। ओके। हम्म। और अब देखो आपका फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का। वो लीनियर मैग्निफिकेशन का लेंस, अरे याद है क्या नहीं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज, या इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो लिखो वो बाय लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, बाय लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, शैल आई इरेज इट? ये सब हटा दो क्या मैं? चलो जान दो, काय को हटाता हूं, रखता हूं ऐसा। बाय लीनियर मैग्निफिकेशन वी गेट इमेज डिस्टेंस, नहीं तो कुछ भी करो यार, क्या कुछ फर्क नहीं गिरता। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, आप लिखना, मैं नहीं लिखता। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। ओके। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दोनों केसेस के लिए लगाओ। ये जो पहली केस थी व्हेन लेंस इज क्लोज टू द बाइप्रिज्म, देन व्हाट इज फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला मिलता है, इमेज डिस्टेंस कितना है? v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, है क्या नहीं? इमेज साइज d1, ऑब्जेक्ट साइज d, इक्वेशन नंबर 1। यही फॉर्मूला सेकंड केस के लिए अप्लाई करो। इमेज डिस्टेंस कितना? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, इमेज साइज d2, ऑब्जेक्ट साइज d, इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई d1 and d2, sorry, multiply equation 1 and equation 2. What do you get? मल्टीप्लाई, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मिलता है देखिएगा। मल्टीप्लाई करने से आपको मिला v बाय u इंटू यू बाय v इज इक्वल टू d1 d2 बाय d स्क्वायर। क्या ये v एंड v, u एंड u कैंसल होके मिलता है कि नहीं 1? अरे हुआ कि नहीं ये? तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, and therefore
Therefore, D is equal to root of D1 D2. ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्स का फॉर्मूला. हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस? दिस इज हाउ, रूट ऑफ D1 D2. गॉट इट? 3 मार्क्स के लिए सेपरेट पूछा जाएगा, वरना 4 या 5 मार्क्स के लिए बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में आपको यह सब बताना है. और at last you will write that thus what does wavelength of monochromatic light can be measured with the formula bar x into root of d1 d2 divided by capital D. अब देखो आप लोगों को ये जो बायप्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना जरूरी है क्या? ना. बायप्रिज्म का वो जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो मालूम होना जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल. We can find out now because we have used convex lens for the measurement of distance between virtual sources. Have you understood दोस्तों? अरे बात समझ में आ गई? क्या किसी को कुछ परेशानी है? आपके सामने नोट्स होंगे, आपके सामने बुक होगा, उसमें से समझ में नहीं आया क्या नहीं आया पता नहीं, लेकिन क्या आप तो समझ में आ गया? ओके. चलो अब देखो, अब थोड़ा सा अगर n दिया हो तो कल का फॉर्मूला. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो कल का फॉर्मूला, वरना आज का फॉर्मूला. समवन के जे जे इज इन क्लास. हाँ कोई तो है यार, मैं भूल गया, मैं पूछने वाला था. कौन है वो अपना दोस्त? डबल के डबल जे, हु आर यू? आपका नाम तो बता. के जे जे. कैन यू हियर मी? वैष्णवी माने. हु इज दिस फेलो वैष्णवी माने? आणि ते के जे जे काय भानगडे? वैष्णवी माने. हो वैष्णवी माने नाव आहे, पण पहिल्यांदाच आलीस. आमिर सर नमस्ते. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 12वीं का सिलेबस कब शुरू हो रहा है सर? कब शुरू होते रहता है 12वीं का सिलेबस? 12वीं का सिलेबस कब शुरू होता है? है क्या ना? अभी तो 11वीं का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, लेकिन 12वीं का सिलेबस चालू है. कैसे क्या बोलना बच्चों को? शुरू शुरू ही होता. है क्या नहीं? चलो, तो क्या बोलना है मुझे कि हमने रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा कुछ कहा है, 11वीं का तो खत्म होने दो. 11वीं का तो खत्म होने दो. आता कोणता चॅप्टर चालू आहे रे? खोले. होय खोले. आता कोणता चैप्टर चालू है? सर कॉलेज 23rd से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू होंगे क्या?
गॉड नोज गॉड इज ग्रेट, है कि नहीं? मेरे से ज्यादा तुझे पता है वो। ये दूसरी रे आ गई, ये अपनी परपेंडिकुलर लाइन है, और ये हमारी नॉर्मल है। फिर हमने ये ऐसा इधर डिवाइड किया था, इसको पैरेलल निकाला था, और फिर ये, और यार यार इधर से ऐसा परपेंडिकुलर डाला था, फिर बाद में शॉर्टकट ढूंढा था, है ना हमने, ऐसे डायग्राम निकाल के, है कि नहीं? अच्छा, मुझे ये निकालने की जरूरत ऐसी है कि भाई यहाँ पर थी ये ऐसी वेव्स, ऐसे बताया था हमने, पण डायग्राम काढताना बाबळे ना, म्हणजे प्रत्यक्षानं इथल्या वेव्स नव्हत्या दाखवल्या, इथल्याच वेव्स दाखवल्या होत्या, बरं का? है का नाही बाबळे? बाबळे बरोबर आहे का नाही? ये ऐसी हमारी डायग्राम थी वो. म्हणजे मला सांगायचं काय माहितीये का, की जेवढ्या वेव्ज इथं येतील तेवढ्याच वेव्ज इथं असणार आहे, पण वेवलेंथ कमी होणार आहे. नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, काय? नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीटर इज कॉल्ड एज वेव नंबर. नंबर ऑफ वेव्स पर युनिट लेंथ म्हणू शकता तुम्ही त्याला, पण पर मीटर म्हणजे वेव नंबर म्हणतो आम्ही त्याला, नाही का? नंबर ऑफ वेव्स पर युनिट लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, पर युनिट लेंथ. पण जर का याचे इथं दोन वेव्ज असतील, इथे दोन वेव्ज असतील, तर इथं जेवढा फेज चेंज झाला तेवढाच फेज इथेही चेंज झालेला आहे. मग या फेज चेंज नंतर तुमचा आमचा इथं जो डिस्टन्स आहे तेवढं डिस्टन्स तर इथं नाहीये, म्हणून आम्ही याला म्हणतो ऑप्टिकल पाथ. लक्षात घ्या, जेवढा ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, म्हणजे या वाळूच्या रस्त्यात तुम्ही इतकं चालणं म्हणजेच डांबर रस्त्यावरून इतकं चालल्यासारखं. समय तो एक ही लिया ना, ए से लेकर डी तक गया, बी से लेकर सी तक गया था. हे बघा, एकाला डांबरी रस्ता आहे आणि दुसऱ्याला इथपर्यंत डांबरीच आहे, पण इथं अशी रेती टाकलेली आहे, नाही का मित्रांनो? इथून इथे इथपर्यंत आले दोघ जण पळत, सारख्या स्पीडनं, सारखेच आहेत एकदम, उंची पावलाची लांबी सगळं सारखं. हा इथून इथपर्यंत गेला तर हा इथून इथपर्यंत जाणार आहे, बरोबर आहे का नाही? ए आणि बी पर्यंत सोबत होते, पण बी पासून सी पर्यंत गेला, एक चांगला रस्ता होता. ए पासून मात्र डी पर्यंत जाणार आहे, कारण की वाळूचा रस्ता आहे, वाळूत फसताना आपण चालता येतं का फास्ट? नाही चालता येत. मग एडी किती चालला, तर जेवढा बीसी चालला तेवढाच चाललेला आहे तो. म्हणून ऑप्टिकल पाथ दिस इज इक्वल टू बीसी. आलं लक्षात? म्हणजे जर का समजा कोणी असा एक मुलगा इथून इथं आला, ए टू बी आला, दुसरा मुलगा ए टू सॉरी सी टू डी आला, लेंथ तेवढीच है, लेकिन लेकिन क्या है, इतने रास्ते में उसका जो रास्ता था वो बहुत खराब था, मतलब डेंसर था. यहां पर डेंसर है, तो डांबर रोड से मतलब एयर से ए टू बी गया, सी से डी गया, लेकिन बीच में डेंसर मीडियम आया, तो अब कौन ज्यादा चला? सी टू डी वाला ज्यादा चला, है ना? क्योंकि उसका ये जो रास्ता है वो ऑप्टिकली डेंस है. कितना ज्यादा चला वो?
कितना ज्यादा चला इसके लिए निकालना देखना पड़ेगा कि भाई समय तो सेम लिया, भाई ए से बी गया सेम, सी से डी गया सेम, ऐसा मान लेंगे अपन। समय अगर चलता है सेम तो ये कितना ज्यादा चला ये देखेंगे अपन। समय एक का समय दूसरे का अगर ऐसा है तो समय मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एयर में चला अपॉन उसकी वेलोसिटी, समय मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, समय डेंसर का। तो ये डेंसर में चला, डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। दोस्तों ये जो डेंसर मीडियम में चला वो कितना चला देखेंगे। डेंसर मीडियम में का डिस्टेंस v d divided by va into da, or d air is equal to v air by vd into dd। एयर में अगर इतना ही डिस्टेंस की बात करनी है मुझे, वो चला डेंसर मीडियम में इतना, डिस्लेट डेंसर मीडियम में, पर वो कितने चले जैसा है। तो देखो इसको कुछ ना, हमारा फॉर्मूला क्या खाता है, वेलोसिटी इन एयर अपन वेलोसिटी इन डेंसर, किसका फॉर्मूला ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये है एन डेंसर मीडियम में का डिस्टेंस। तो चला असल में वो इतना, पर कितने चले जैसा, एन टाइम्स वो डिस्टेंस, उसको बोलते हम ऑप्टिकल पाथ। दिखता इतना पर असल में कितना चला वो, एन टाइम्स डिस्टेंस। समझ में आ गया। म्हणजे तुम्ही दररोज 5 किलोमीटरची रनिंग करता, परंतु तुम्ही काय झालं शेतात गेले रनिंग करायला, जिथं थोडा चिखल आहे किंवा माती आहे वगैरे वगैरे, रोडवरती 5 किलोमीटरची रनिंग करता, परंतु तुम्ही त्या शेतामध्ये नांगरटीचं शेत एकदम नांगरट काढलेली त्याच्यात पळवलं तुम्हाला, तर एकाच किलोमीटर मध्ये तेवढीच तुमची एनर्जी लॉस होईल की नाही जेवढी 5 किलोमीटर मध्ये होती. सो दॅट 1 किलोमीटर रनिंग इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ, that is equal to 5 kilometer distance. Have you understood this? समझ में आया? हाँ, अब बात ऐसी है, ए बी डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस सेम है, ए बी डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस सेम है, पर बीच में ये ऑप्टिकल डेंसर है। तो ये जो सीडी पाथ पे चलने वाला लड़का लड़की असल में कितना दूर चला, जबकि ये टोटल डिस्टेंस मानेंगे हम डी, और ये बोलेंगे डी डी, नहीं तो इसको थिकनेस बोलेंगे टी, इसकी थिकनेस बोलेंगे टी। चला है डी, दिखता है डी, पर असल में कितना चला, ये असल में कितना चला, कितना चले जैसा दिखता, लोगों को दिखता कर यार ये तो सी से डी तक चलेगा, लोगों को लगता कि 1.5 घंटा ही पीरियड लिया 9:30 से 10-11 बजे तक, लेकिन दिखने को बोलने को है, लेकिन बच्चा तो 15 मिनट लेट आया, ये मास्टर 20 मिनट गप्पा मारता, बीच में उसको फोन आता, एपरन तो अलग होता है ना तो ये डी माइनस टी प्लस एन डी, हाँ करेक्ट है समझे। असल में इसकी जगह कितनी बच गई, तो डी माइनस टी, इतनी हवा रह गई, मतलब एयर वाला अच्छा रोड, डी माइनस टी। पर ये कितना है, ये है एन टाइम्स टी, इसका मतलब प्लस एन टाइम्स टी, डी माइनस टी प्लस एन टाइम्स टी, है क्या नहीं। ए बी कितना चलता, ए बी चलता डी,
तो फिर सीडी रास्ते से जाने वाला कितना ज्यादा चला, दैट इज पाथ डिफरेंस। कितना ज्यादा चला, दिखता इतना लेकिन है कितना, इतना। इसका मतलब डी माइनस टी प्लस एन टी माइनस डी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो डी एंड डी कैंसल, एन टी माइनस टी, तो टी कॉमन निकालो, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टी। दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस। अगर तुम्हारे रे के रास्ते में ग्लास प्लेट है खादी जिसकी थिकनेस टी है, तो वो कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करता, एन माइनस वन इंटू टी वाला। दोस्तों क्या ये पाथ डिफरेंस का सिलसिला समझ आया अच्छी तरह से? एप्लीकेशन करना है, बोर्ड को नहीं पूछेगा कोई आप लोगों को ये समझेगा? अंडरस्टूड दिस? ये ध्यान आया पूरा? हाँ, ये डी डी डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू दिस टाइम, ये एयर मीडियम से कम चलता। अगर यहाँ की बात करते हम लोग तो ये ढंग से लिख सकते हैं हम, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस डी ए बाय एन, या डी ए इज इक्वल टू एन टाइम्स डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम। लिखने दो सर प्लीज, ठीक है लिखो, जो चाहे वो लिखो। फिर ये मेरी ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं लिखना है आप लोगों को, तो डायरेक्ट उधर जा सकते हैं आप लोग। यू मे राइट दिस, लिखना है तो। पाथ डिफरेंस, यस, डिस्टन्स अलॉंग सीडी, आणि हे म्हणजे डिस्टन्स अलॉंग सीडी माइनस डिस्टन्स अलॉंग ए बी, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। आखिर में पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टी। ओके, राइट, इज दिस इनफ? सोंगदे झाला का लिहून? और ओके, हटा देता हूं। हम्म, अब देखो, अगर ये दो सोर्सेस है, इन सोर्सेस को हम नाम देंगे ए बी, ये अपनी स्क्रीन है, ये स्क्रीन यहां पर रे आने वाले हैं इधर से, है क्या नहीं, रे आने वाले इधर से। और अगर हम लोग एक के रास्ते में ऐसा एक आधा थिकनेस टी वाला रख देंगे, ग्लास स्लैब, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, तो जो पहले पाथ था एपी तक वो वही रहेगा या अब अलग होगा? इट विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी मोर देन अर्लियर, ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा। अब ये देखिएगा, मान लो कि मेरी
ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर अपने रेज आए वाले हैं, ऐसा ऐसा। अब आप लोगों को तो पता है कि सेंटर पोजीशन ये होती है सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि पाथ सेम है क्या नहीं? ये पाथ सेम है। इफ somebody has introduced glass plate of thickness T in the path of ray emitted by A, तो अब जो सेंट्रल बैंड था जिस पर पाथ डिफरेंस 0 था, तो क्या पाथ डिफरेंस 0 रहेगा? पाथ डिफरेंस 0 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो किसका पाथ ज्यादा हुआ? ऊपर वाले रे का। तो मेरा सेंट्रल बैंड जहां पर था वो वहीं पर अब नहीं रहेगा। तो वेयर विल इट गो? विल इट गो इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? ठीक है, आप लोग सब लोग बोल रहे डाउन, तो उस पर चर्चा करेंगे। जर का समजा तो डाऊन गेला, समजा तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आपण काय करू, इथं एक पॉइंट घेऊत आणि मग तो असा रे इथं आणूत, मग तो रे असा इथं आणू त्या ग्लास प्लेट सहित, नाही का रे? ग्लास प्लेट सहित आणावं लागेल आम्हाला, ग्लास प्लेट सहित आणावं लागेल, कारण ग्लास प्लेट इथं असणारच आहे ना, त्याच्या त्याच्या समोर नेऊन ठेवली ती ग्लास प्लेट। आता जो तुमचा हा पॉइंट आहे ओ डॅश, तो एओ डॅश एओ पेक्षा कमी झाला का जास्त? मोर झाला। त्या ग्लास प्लेट मुळे मोर झाला होता का कमी झाला होता? ग्लास प्लेट मुळे ऑलरेडी पहिल्यांदा या ओ पोझिशन साठी जास्त झालता की नाही? मग तुम्हाला तो जास्त झालेला कमी करायला पाहिजे का जास्त करायला पाहिजे? शुड यू इनक्रीज द पाथ ऑफ रे और डिक्रीज द पाथ ऑफ रे? कमी करायला पाहिजे, तो आपने तो नीचे लेकर गए। फिर किधर जाना चाहिए वो सेंट्रल बैंड? सेंट्रल बैंड शुड गो अप। डू रिमेंबर, अगर मैं ए के रास्ते में ग्लास प्लेट रखा तो उसी साइड में शिफ्ट होगा मेरा पैटर्न, मेरा ओ पॉइंट चले जाएगा यहां पर। तो ये जो रास्ता है वो कम हुआ, ये जो रास्ता है वो बढ़ गया। वो दिखने को कम है लेकिन वो असल में वो इतना है, असल में कम हुआ लेकिन वो ये वो इतना है, क्योंकि वो ग्लास प्लेट का दिखता नहीं ना हमें ज्यादा। समझे क्या? म्हणजे 12वी आर्ट्स होणं आणि 12वी सायन्स पास होणं फरक आहे ना। मराठी एक तासभर वाचणं आणि फिजिक्स एक तासभर वाचणं सेम आहे ना, का डिफरंट आहे? एक तास मराठी वाचलं आणि एक तास फिजिक्स वाचलं, दिसायला दिसतं एक तास वाचलं, परंतु आहे का ते एक तास वाचल्यासारखं ना? जे वाचतंय फिजिक्स त्यालाच कळतं ते की काय वाचलंय। नाही का नाही? जावे त्याच्या वंशी तेव्हा कळे, असं म्हणतो की नाही आपण? समजा कोणी जर म्हणलं ना एकच तास वाचला का फिजिक्सचा अभ्यास, तर आपण मनात काय म्हणतो, तू वाचून बघ मग समजेल तुला। चलो, तो ये समझ में आया क्या? हाँ, ये ग्लास प्लेट जर कधी वरच्या बाजूला ठेवली, वरच्या सोर्सच्या समोर ठेवली, तर सेंट्रल बँड वरती जातो। सेंट्रल बँड कुठे जातो? वरती जातो। मग तो पाथ डिफरन्स किती तयार होतो त्या थिकनेस टी मुळे? थिकनेस टी मुळे पाथ डिफरन्स तयार होतो इतका। पण पाथ डिफरन्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे का? समजा जर हे असेल वाय, हे डिस्टन्स असेल वाय शिफ्ट झालेलं,
तर तुम्हाला माहितीये पाथ डिफरन्स इज वाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अरे हा कि ना दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्क्स का सच में होता है। आहे ना, म्हणजे आमचं 10वीचं पर्सेंटेज असं अभिमानानं सांगतो ना आम्ही, 90%, 95%, 98%, आणि त्याच्या सायन्सला किती असते, 67, 70, 75, 81, ऐसा रहता। और हम बोलते मुझे सर 95% है, बस ऐसा बोलने का इसने अपने को, अपना परसेंटेज 95% है। अब सबसे कम किसको, साइंस को। और उसमें साइंस में जो कम होते हुए किसके हुए बोल रहे थे, फिजिक्स के। संस्कृत का 99, 100, हाँ ऐसा है वो। और फिर 11वीं 12वीं में आने के बाद वो बच्चे और पेरेंट्स क्या बोलते, ये टीचर जो है ना, ये टीचर के कारण मेरा नीट का वो चले गया, जेई का रैंक चले गई, ये टीचर के कारण। कौन टीचर, वो फिजिक्स वाला टीचर। वरना मैं तो यूं जाता था वहां पर, मैं तो यूं जाती थी वहां पर, है ना ये, लेकिन ये आदमी ने अच्छा नहीं पढ़ाया। लाइफ लॉन्ग फिजिक्स का टीचर गालियां खाता, लाइफ लॉन्ग, नमस्ते भी नहीं करते बाद में, है का नाही। वो इसका पेपर में मार्क्स कम गेले ना, तो तुम्ही भी देखो, कमी मार्क पडले रे पालके, मला तुम्ही फोन पण करत नाही, पण तेच मुलं बायोलॉजीच्या केमिस्ट्रीला फोन करून सांगतात, सर मला एवढे पडले बरं का। असे। चलो तो ये, क्या ये पाथ डिफरेंस यही है, क्या ये जो पाथ डिफरेंस है वो इस ग्लास प्लेट के कारण है, क्या वो इसी के कारण है, तो क्या दोनों इक्वल है, क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है, बताओ यार। अरे त्याच्यामुळे तर आपला सेंट्रल बँड वरती गेला ना, म्हणून शिफ्ट ऑफ सेंट्रल बैंड, क्या लिखेंगे, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल बैंड इज इक्वल टू n-1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू टी। फॉर्म्युला ध्यानात ठेवायचा आहे, बोर्डाला नहीं, पण परंतु बट लेकिन किंतु दूसरी जगह के लिए। ये शिफ्ट वाई, पैटर्न शिफ्ट बाय दिस मच डिस्टेंस, समझ में आया कह रहे हैं, हेलो बाबळे समजला का, फील आला का, फील, फॉर्म्युला तर तुझ्याही नोट्स मध्ये असेल, फॉर्म्युला तुझ्याही नोट्स मध्ये असेल, पण फील आला का आता, क्या यही ढंग से लिया था तुम्हारा भी, तुम्हारे जहां जहां तू पढ़ी है वहां पर, ये ये डायरेक्शन से लिया था पूरा, ऑप्टिकल पाथ बता के, फिर ये सब। चलो ये शिफ्ट होना चाहिए। अब ये शिफ्ट में इसमें कितने बैंड्स आते ये भी पता चलता, कितने नंबर ऑफ बैंड से शिफ्ट हुआ, क्या है, कितने नंबर ऑफ बैंड से, तो फिर पहले आप लोगों को पता रहता, है क्या नहीं, एन एक्स इज इक्वल टू, एन एक्स इज इक्वल टू अगर वाई है, एन एक्स बार, एन एक्स बार इज इक्वल टू वाई अगर है, तो मेरा ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला मुझे पता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला पता है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और वाई का फॉर्मूला भी ये है, तो हम लोग वो कंपेयर करेंगे, तो वाई का फॉर्मूला लिखेंगे, बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखेंगे, और क्या होता है वो देखेंगे। शिफ्ट ये बाजू को हटा देंगे, सो एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और y का फॉर्मूला है n-1, लेकिन ये n क्या है बाबा, ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं उसे n के बदले म्यू लिखता हूं अभी, क्योंकि दोनों तरफ n है, तो तुम लोग कर देंगे कैंसल, है ना, μ-1, ये t कैपिटल D बाय स्मॉल डी। दोस्तों ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, ये चले गया, तो
number of fringes shifted is equal to this. Number of fringes shifted, number of fringes is equal to mu minus 1 into t by lambda. है n into bandwidth is equal to this. So मेरा लैम्बडा कैपिटल डी का फॉर्मूला ये सब ऐसे समझ में आ गई बातें. किती बँड शिफ्ट झाले असतील असं विचारलं तर हे असला फॉर्म्युला तयार करायचं, म्हणजे असं सांगायचं. ओके. हाँ, ये अभी और क्या होता है, मानो कि मेरा ये एक सोर्स दूसरे सोर्स की पोजीशन ऐसा कुछ है, यहां पर एक सोर्स है ए, यहां पर दूसरा सोर्स है बी, और यहां पर है अपनी स्क्रीन. ये यहां पर है सेंटर. ओके. नाउ ये डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, तो फिर ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये तो हुआ है d/2 d/2, है क्या नहीं. अब अगर ये सोर्स के सामने या बी सोर्स के सामने अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, यहां पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, क्या बोलता है वो, वहां पे मिसिंग वेवलेंथ ऐसे भाषा रहती. इन फ्रंट ऑफ आइदर सोर्स, exactly in front of either source, there is a destructive interference. So what will be the possible wavelength? What will be the possible wavelength? ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, बोर्ड में नहीं. तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे भाषा में yn, है कि नहीं. yn का फॉर्मूला है n, पर वो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो yn का फॉर्मूला क्या होता है, yn का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, होता है कि नहीं. पर अगर ये yn यहां देखा गया तो ये तो d/2 है, सो दिस इज व्हाट d/2. दोस्तों मेरा 2 नमस्ते. अगर 2 नमस्ते हुआ तो ये लैम्बडा मिलता है d² बाय कैपिटल डी इंटू 2n माइनस 1. दीज आर मिसिंग वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इज ये, वो इतने में से हो सकती. अगर वहां पर फर्स्ट डार्क बैंड है तो n की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, एंड दिस विल बी लैम्बडा मिल सकता है d² बाय डी. अगर वो दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पोजीशन है, दूसरी डार्क बैंड है, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो ये मिल जाएगा 3. तो वो वेवलेंथ इतनी भी हो सकती, तो ये वेवलेंथ इतनी भी हो सकती, कितनी, d² बाय d² 3d. अगर वो तीसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, सो दैट वेवलेंथ में बी दिस वन. एंड ऐसे आपको मिसिंग वेवलेंथ कौन सी हो सकती पूछा जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में. अंडरस्टूड दिस. समजा जर तिथं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे डार्क पॉइंट आला असेल, डार्क बँड आला असेल, तर त्या वेवलेंथची किंमत किती असू शकते, इतकी असू शकते. अंडरस्टूड. अगर वहां पर ब्राइट पॉइंट आता तो
तो पॉसिबल वेवलेंथ कैसी हो सकती? देखो यहीं पर अपन बता देंगे। यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ये yn होगा n लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, पर वो है d/2। तो ये मेरा पॉसिबल वेवलेंथ अभी निकालना है। तो अगर ये मेरा लैम्बडा का फॉर्मूला बनाना है तो मैं बनाना नहीं खाऊंगा, पर ये काम करूंगा, है क्या नहीं? और ये एन भी होगा। अगर पहला ब्राइट बैंड है तो लैम्बडा हो सकता है d²/2d। दूसरा बैंड है तो वो हो सकता है d²/4d। तीसरा है तो समझ में आ गया सबको? अगर वहां पे ब्राइट पॉइंट किसी ने बता दिया तो ये वेवलेंथ होगी, डार्क पॉइंट बता दिया तो ये वेवलेंथ होगी। यहां पे अगर डार्क पॉइंट है तो वो पहली वाली कौन सी, d² बाय d²/3d d²/5d ऑड है, 1/ऑड नंबर है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये सब एक्सेप्टेड है? पक्का? श्योर? ओके। आता समजा जर फ्रेंड्स आमचे दोन पॉइंट सोर्सेस जिथे याची अँप्लिट्यूड आहे A1, याची अँप्लिट्यूड आहे A2, दोन सोर्सेसचे डिफरंट अँप्लिट्यूड्स आहेत, डिफरंट अँप्लिट्यूड्स आहेत। स्क्रीनवरती जिथं कुठं तुम्हाला पॉइंट भेटेल, स्क्रीनवरती जिथे कुठे पॉइंट भेटेल तिथे तुमच्या पॉइंटची इंटेन्सिटी अँप्लिट्यूडच्या भाषेत म्हणजे अँप्लिट्यूड किती असते, अँप्लिट्यूड असते रूट ऑफ सॉरी A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos ऑफ दिस डेल्टा किंवा फाय किंवा अल्फा, बिकॉज दॅट अँगल इज अ फेज डिफरन्स। मग जर का समजा आमचा कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स भेटायचा असेल तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या ठिकाणी इंटेन्सिटी किती असेल, इंटेन्सिटी ॲट द कन्स्ट्रक्टिव्ह पोझिशन, इंटेन्सिटी ॲट द कन्स्ट्रक्टिव्ह पोझिशन इज रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा स्क्वेअर, पण कन्स्ट्रक्टिव्हच्या ठिकाणी डेल्टा असतो 0, म्हणून ते असतं A1 प्लस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, हा की ना, A1 प्लस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर। आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या ठिकाणी रे बाबा, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या ठिकाणी आमच्यासाठी तर तेच रिझल्टंट, पर ये होगा A1 माइनस A2 ये ब्रैकेट स्क्वायर। इसलिए बोला जाता रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव्हच्या ठिकाणी मॅक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव्हच्या ठिकाणी मिनिमम, and this will be equal to A1 plus A2 bracket square divided by A1 minus A2 bracket square। क्या मैं A2 कॉमन ले सकता, A2 मैं कॉमन ले सकता कि नहीं, यहां पर ले सकता। क्या कॉमन लेके कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा। If A2 is taken common, then it will be A2 square in bracket A1 by A2 minus plus 1 bracket square divided by A2 square A1 by A2 minus 1 bracket square। क्या A2 स्क्वायर खचाक? अगर मैं A1 by A2 को कुछ रेशो नाम देता R,
रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो ये R+1 होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R-1 होगा उसका स्क्वायर, या आप लोग बोल सकते एक ही स्क्वायर में R+1 डिवाइडेड बाय R-1 ब्रैकेट स्क्वायर, वेयर R इज इक्वल टू, सिंस R इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ये है दिस वन, गॉट इट? हे ध्यानात ठेवायचंय तुम्हाला, रेशियो ऑफ मॅक्सिमम इंटेन्सिटी टू मिनिमम इंटेन्सिटी. किरण जाधव 10:50 आलास, किरण जाधव. अरे वा. आणि हा रेग्युलर असतो का किरण जाधव, का पहिल्यांदाच आलाय आज? जशी ती वैष्णवी माने आहे का, वैष्णवी माने के आहे का, के आहे? पहिल्यांदाच आली वैष्णवी माने आपल्या पिरियडला, नाही का? याच्या अगोदर तर कधी दिसलीच नाही माने वैष्णवी. 12वी चालू झाली असं वाटलं का काय बेटा तुला? 12वी चालू झाली. मला एक प्रश्न विचारत होता नाही कधी, 12वी चालू होणार आहे का? कधी आलती बेटा वैष्णवी माने? काय एखाद्या वेळेस आले असेल. लॉंग लॉंग अगो देअर वॉज अ किंग, ही हॅड 2 वाइव्स, वन वॉज आवडती, वन वॉज नावडती. ऐसे केस में आई होगी. हम्म हम्म. चलो, और क्या करते? अब क्या करते? प्रॉब्लेम्स नाही सरालते, नेट चालत नव्हतं. मागचा पिरियड किती दिवसापूर्वी केला सांग बरं तू, जाऊ दे सांग. कोणत्या चॅप्टरला होती? तू काय सांगशील नाही का, बरोबर आहे की नाही? मागच्या चॅप्टरचं नावच माहित नाही तिला. कोणता चॅप्टरला होती? आणखी मेसेज आलाच नाही मॅडमचा. चला 10-7-8 मिनिटाला एखादा दुसरा प्रॉब्लेम घ्यायचा का? घेऊन टाका. रेशियो ऑफ एम्प्लिट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स, ratio of amplitudes of two interfering waves is 81:1. सकाळी काय झालं माहितीये का, प्रॉब्लेम दिला मी एक, वर्गात मुलं 200 होते. प्रॉब्लेम दिला आणि मग मला वाटलं काही लोकांनी प्रॉब्लेम लिहिलाच नसेल. मी रॅन्डमली म्हणायला सुरुवात केली, ए तुझा माईक चालू कर, तुझा माईक चालू कर, आणि प्रॉब्लेम वाच, प्रॉब्लेम वाच. विदिन 30 सेकंड्स 50 मुलं लेफ्ट झाले, 50. आणि पुढच्या 2 मिनिटांनंतर 10-15 लेफ्ट झाले. 135 विद्यार्थी होतो फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व करताना. ऐसी हालत है. ये है ऑनलाइन का जमाना, है क्या नहीं? लिखो. तो वैसे तुम मत करो, मैं पूछने वाला झाले 2-4 लेफ्ट असं म्हणता ना, ते बघा पतानो रोहन लेफ्ट. चलो चलो. रेशियो ऑफ एम्प्लीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स इज 81:1. What will be the ratio of
maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern. यश कदम लेफ्ट. यश गेला, त्याला माहिती आपल्याला विचार देत आता, आणि तो 100% लिहित नाहीये प्रॉब्लेम. काय प्रॉब्लेम एवढं जे सगळं आज लिहिलं ना तुम्ही सगळ्यांनी, ते यांनी लिहिलेलंच नाहीये. गॅरंटी सांगतो मी तुम्हाला. पतानो 100% लिहित नाही. गौरव वाठोरे येतो का रे? आहे का गौरव वाठोरे? खूप दिवसांनी दिसला नाही बघ गौरव वाठोरे. नाहीये. व्हॉट इज रेशियो ऑफ मॅक्सिमम इंटेन्सिटी टू मिनिमम इंटेन्सिटी? गौरव वाठोरे नाहीये. व्हॉट इज रेशियो ऑफ मॅक्सिमम? अरे काय एखादी ओळ ध्यानात ठेवली पाहिजे अर्जुनराव. खरवडे बॉस, रिपीट करा. चला सांगा लवकर, 4 मिनिट बाकी आहे. कोई है आंसर देने वाला क्या? नहीं है? गौरांगी, अडकेने, प्रथमे सगळ्यांचे एकच आलं का? ओके. 81:1. A1/A2 आहे 81:1. एम्पलीट्यूड तो ये नए के बराबर है ना. ये तुम्हारा 1.01 इंटेंसिटी मैक्सिमम ये तो गलत बात हो गई. I मैक्सिमम बाय I मिनिमम is equal to A1 plus A2 divided by A1 minus A2 ब्रैकेट स्क्वायर. 1.05 भी नहीं आएगा, वो बहुत कम आने वाला है. बोला था नियर अबाउट 1. तो ये होगा 81 A2 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 81 A2 माइनस A2 उसका स्क्वायर. अभी ये होगा 82 डिवाइडेड बाय 80 उसका स्क्वायर. तो हाँ देखो अभी खोले का चेंज कर रहा है अभी वो. ये अश्विनी कदम तो ओम कदम तो ये 0 चले गया. 1.025 उसका स्क्वायर. स्क्वायर करना भूल गए आप लोग. 1.05 1.05 बराबर यार. 1.05 करेक्ट. 1.05:1. अब दूसरा लिख लो, 2 मिनट है, जल्दी करो. इंटेंसिटी रेशियो ऑफ किंवा रेशियो ऑफ इंटेन्सिटीज ऑफ टू सोर्सेस. रेशियो ऑफ intensities of two sources is 5:1. 5:1 हो सकता है कि कैलकुलेशन आसान जाएगा क्या? एक सेकंड. हाँ 25:1 लिया. 25:1. What will be the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the pattern?
What will be the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern? चलो जल्दी, समय खत्म हुआ। ओ जल्दी करो। खोले इज करेक्ट। वाह वाह वाह, बहुत सारे लोग करेक्ट। दिस इज व्हाट सॉल्यूशन। This is the solution and many of you are correct. Just one has not taken the square of 1.5. Yes, very good. Thank you दोस्तों, मिलेंगे कल। Till that, have a good day, have a nice time, take care of yourself and your family also. Bye bye.